बाहर अब्सलोम को देख रहे थे। Last time we were looking at Absalom. तो वो एब्सलोम 1 था, ये अब आज एब्सलोम 2 है। And we saw Absalom part 1, and today we'll see Absalom part 2. देखिए, एक विश्वासी में एक बच्चा जीता है, चाहे वो बुढ़ा हो जाए, के अंदर एक बच्चा In a believer, a child lives, even if the believer physically becomes old, वास्तविक विश्वासी। or true believer. हाँ, और बच्चे में एक बड़ी भारी जिज्ञासा होती जानने के लिए, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और ये उसे बहुत कुछ सिखाता है। ये And जानने a की child has a great desire to know how, why, what, and this is a curiosity in every child. वो उससे शर्माता नहीं है बिल्कुल। And he's not ashamed of that. इसलिए बच्चे बहुत जल्दी भाषा सीख जाते हैं। That is why children learn languages very fast. बड़े नहीं सीख पाते, उन्हें शर्म आती है, लोग क्या। Adults are not able to because they feel embarrassed when they speak wrongly in a language. प्रभु कहता तुम बच्चों के समान बनो, ये बात पर And the Lord also tells us to be like little children. और जिस दिन ये बच्चा मरने लगता है, The day this child starts dying in us, हाँ, तब मेरा मैं बढ़ने लगता है। my eye starts growing in me. हाँ, तब मैं सीखने की जगह दूसरों को सिखाने लगता हूँ। Then instead of learning, I start trying to teach others. हो सकता है विजय में आनंद होता है, मैं ये नहीं कहता विजय में, मगर पलों की खुशी होती है, ज्यादा देर टिकने वाली खुशी नहीं होती। In victory, there is a joy, but it is momentary joy. It is not going to last for a long time. जो सीखने में आनंद मिलता है वो कहीं बहुत ज्यादा होता है। So that the joy that we get in learning is an abundant joy. जिस विश्वासी के अंदर बच्चे का दिल होगा, वो जरूर सीखने की कोशिश करेगा, ये वचन क्या है, क्या कहता है, कैसे कहता है, क्यों और कैसे, बहुत सारे सवालों से A believer who has the heart of a child will always want to know, why does the word say like this? What does this mean? He'll always have curiosity. वो वास्तव में उसका आनंद लेता है, जो स्थायी आनंद। And he takes real joy, static joy in that. ये बाइबल जो है कोई पिक्चर बुक नहीं है। The Bible is not a picture book. ये वर्ड बुक है, कहना चाहिए शब्दों की किताब है। It's a word book. पुरानी इजिप्शियन लैंग्वेज थी, वो विक्टोरियल लैंग्वेज थी, उसमें चित्र बनाकर भाषा को समझाया जाता था। The old Egyptian language, or rather the Egyptian script, was a pictorial script, and it was through pictures that the language was spoken. मैं मसीह को निकालकर मसीह की तस्वीर बना दूं, तो वो वास्तव में मसीह नहीं है। If I take out Christ and make a picture of Christ, that is not the real Christ. जो असली मसीह है बाइबल में है, वचन असली जो क्रूस है वो बाइबल में है, वो बाहर बना के लगाने वाली वो तो झूठी है, धोखा है। The real cross in the Bible is there in the Bible. If you take it outward and keep it outside, that's a false cross. तो अब हमें कुछ बातें समझनी है। जैसे हर एक के पास एक सिन क्रेडिट कार्ड होता है। We all of us, we've got a sin credit card. आप उससे कितना भी मजा ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप sin credit with card that credit card you can take as much pleasure in sin as you want. कल ब्याज समेत सब लौटाना, but tomorrow you will have to pay everything back with interest. कि एक फिक्स डेट है, नहीं तो फिर वो बहुत खतरनाक बन जाता है। There is a fixed date. After that, the credit card, it becomes very, very dangerous. हाँ, मगर हम विश्वासियों का जितना क्रेडिट था, कर्ज था, वो तो उसको चुका दे। But all our credit against sin has been paid for by Christ. हाँ, मतलब क्रूस पर सारा कर्ज हमारा दूर कर दिया गया। All our debt has been paid for on the cross. हम श्राप से निकलकर आशीष में आ गए। We've come out of curse into a blessing. आपको दिखता हुआ शायद आशीष नहीं है, मेरे घर में वो आशीष नहीं है,
मेरे परिवार में मेरे पैसे पर वो आशीष नहीं दिखाई देती, हो सकता है आपको लगे। It may be you may be thinking, I don't see the blessing in my life, in my family, in my job, in me. हाँ, तो आपकी खोज कहीं कुछ संसारिक है, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे उस आशीष को, मगर आप शाप So से बाहर निकल चुके हैं। maybe your search is a worldly search. You actually have come out of a curse. हाँ, मैंने भाई जो आज बता रहा था, मैं उससे एक बात समझा पहले संदेश में, लहू की सामर्थ कहीं कम नहीं हो रही, पुरानी नहीं पड़ रही। And what Abdul was sharing was, I understood one thing: the power of the blood is not diminishing at all. हाँ, तो मगर दूसरी बात है, जो ताड़ना है हमारी, वो कोई श्राप नहीं है, ताड़ना श्राप नहीं है। On the other hand, when the Lord chastens us, that is not a curse. मेरा श्राप तो सारा मसीह खुद शापित होकर समाप्त कर दिया। My Lord, having taken my whole curse on the cross, died for me. हाँ, आज हम अब्सलोम पर जाएंगे, और Today we'll go to Absalom. अब्सलोम की जितनी भी कहानी है, उसमें जितने भी किरदार है, अब्सलोम है, दाऊद है, क्या जितने भी किरदार है पूरी कहानी में जो आएंगे, उनमें से किसी का भी एक का भी हाथ साफ नहीं है, पवित्र हाथ Now, नहीं है। in the entire story of Absalom, whether it is Absalom or David or Joab or anyone else, their hands are not clean. हाँ, किसी का हाथ साफ। None is having clean hands. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे अब्सलोम के बारे में दूसरे हिस्से में जाने की। Come, let us pray and go into the second part of Absalom today. उससे पहले एक पद पढ़ देंगे, दूसरा शमूएल 18:33 मेरे Please लिए। read 2 Samuel 18:37. 2 Samuel 18:37. हाँ जी, 27. यस भाई, 33. पैरू 33. 1833. ओके। उसने ये कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने भाई उससे माफ करना, माफ। 33 भाई, 33. अच्छा 33, यस भाई। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अब्सलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। The king was shaken. He went up to the room over the gateway and wept as he went. He said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, my son Absalom, if only I died instead of you, Absalom, my son, my son." प्रभु जी, आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves by simple faith. सच में मालूम नहीं है कि प्रभु ये वचन मैं आपकी इच्छा के अनुसार लाया हूँ या नहीं ला रहा हूँ। I truly don't know whether I'm bringing this message in your will or not. प्रभु, मैं इससे खुद संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे सुनने वाले भाई कैसे संतुष्ट हो? I myself am not satisfied with this message. How will my hearers be satisfied? इसलिए प्रभु, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रभु। But Lord, I have no other way. या तो मैं लोगों का समय बर्बाद करूंगा, Either I will waste the time of your people, और प्रभु अभी तू मेरी इस कमजोरी को सामर्थ्य में बदल सकता है। oh Lord, you can at this moment turn my weakness into strength. और प्रभु, मैं उसी लहू के सहारे आया हूँ जो सामर्थी लहू है। Oh Lord, I have come through the power of the blood that is extremely powerful. मेरी बुद्धि नहीं कहती कि प्रभु मैं बहुत अच्छा संदेश दे पाऊंगा। Oh Lord, my mind is not saying that you'll give a good message today. मैं सिर्फ तेरी प्रतिज्ञाओं के सहारे आया हूँ, जो यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 में। I am only standing on the promises of Exodus 12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. और प्रभु, इसलिए आप संभालें, आपके लोग बड़ी आशा से इस चेहरे की तरफ देख रहे हैं। That is why, Lord, you would sustain your people are looking with great hope towards me. प्रभु, इस चेहरे को क्रूस के पीछे छिपा ले। A great hope towards this space, Lord. Hide this space behind the cross, ताकि लोग तेरा चेहरा देख पाए इस वचन। that people may be able to see your face in your word, सारी महिमा आपको मिले, and you may receive all the glory. इसलिए पवित्र आत्मा आप कंट्रोल लें प्रभु। So, Holy Spirit, take full control. दोनों भाई अपने आप को आपकी वेदी पर डाल देते हैं।
We both, brothers, cast ourselves on your altar. क्रूस की सामर्थ को चाहते हैं प्रभु। Oh Lord, we want the power of the cross, प्रभु जी, आपके लोग आपकी महिमा को देख सके, that your people may be able to see your glory. आप ही बात करें, You only talk to us. ये यीशु दया करें, Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से बात। In Jesus' name we pray. Amen. मैं इस कहानी को थोड़ा सा कुछ दूसरी तरफ ले जाकर शुरू में बताना चाहता हूँ, मसीह विरोधी बताना चाहूंगा थोड़ा I सा। will take this story from a little divergent path to tell you who is the Antichrist. थोड़ा सा हटके लगेगा मगर है इसी के साथ। We are digressing a bit, but it is connected to the story. अब्सलोम को भी एक मसीह विरोधी का रूप माना गया है। Absalom is also considered to be a form of the Antichrist. जैसे निम्रोद था, नबूकदनेस्सर को माना गया है, साउल को भी माना गया, और इसे यहूदा, ये जो क्या नाम है, अब्सलोम को माना गया है, यहूदा स्कूती को भी माना गया है। So it is Nimrod, Nebuchadnezzar, Saul, Judas Iscariot, and even Absalom. इनमें से कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई None of them was an adulterer, कोई एक भी नहीं था। not even one. हाँ, इनके बारे में देखेंगे तो मसीह विरोधी है क्या, थोड़ा सा जल्दी We'll से see a निकल। little bit about the Antichrist. हाँ, देखिए, आदम का पहला बेटा हत्यारा था, The first son of Adam was a killer, a और murderer, उसी कोख से जन्मा दूसरा, born of the same womb. वो धर्मी था। But his brother Abel was righteous. हाँ, दोनों एक ही कोख से जन्मे थे। Both born from the same womb. तो मसीह विरोधी और मसीह एक ही वंश से, एक ही उससे आएंगे, यहूदा से आएंगे, ये ध्यान रखिए। So remember this, that both Christ and the Antichrist, they both will come from the tribe of Judah. हाँ, यहूदा स्कूती भी दाऊद का संतान थे और प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद की संतान थे। Even Judas Iscariot was of the tribe of Judah, from the tribe of David, and so was the Lord Jesus Christ. हाँ, तो हम जानते हैं कि मसीह विरोधी कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस लिए, थोड़ा सा विचार करेंगे, और अब्सलोम में उसकी परछाई कहाँ दिखाई देती है। So we will see a little bit about the Antichrist, where he will come, what he will be, and we see that reflection in Absalom. हाँ, बहुत अट्रैक्टिव, अब्सलोम बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ज्यादा। Absalom was very attractive. मसीह विरोधी बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज्यादा। The Antichrist will be very attractive. हाँ, और जैसे अब्सलोम बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करता था, कहीं तीखी बात नहीं करता था। And just as Absalom would speak very nice, polished language, not hard-hitting words. आपको जब भी थोड़ा इसके बारे में जाने, मैं शब्द पूरे पढ़ नहीं सकता, समय नहीं है, डैनियल 11 पढ़ लेना आप, उसमें ये सारी बातें हैं। मैं पद बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, बाद में पढ़ लेना, अभी नहीं है। तो बहुत And चिकनी, you can read Daniel 11 also to understand that he would talk flattering words. और 11:32 में देखते हैं डैनियल में, वो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके भरमा लेता है। That 11:32, Daniel 11:32 says he will speak flattering words and he will deceive the people. हाँ, खुद में अन्यायी था, He himself was an unrighteous person. तो लोग आते थे, न्याय मैं दूंगा अगर मैं अन्यायी, And he tells them, I will give you justice. और लोग उसको मानने लगे, उसको करने लगे। And people started accepting him. मसीह विरोधी की आप झलक देखिए, वो क्या करेगा। Look at what the Antichrist is going to do. हाँ, जैसे मैंने कहा, वो व्यभिचारी नहीं था। अगर 11:37 पढ़ेंगे तो वो औरतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण प्रेम नहीं था, वहाँ लिखा हुआ। And just as I said that he was not an adulterer, and it is written he will not have this attraction or love for women. हाँ, उसमें वो चोर था। वो चोर क्यों था? शैतान भी चोर है, क्योंकि वो अपने बाप का सिंहासन चुराना चाहता था। But he was a thief, and because Satan is a thief, he wanted to steal his father's throne. थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल में अगर जाए, वहां पर
पूरे वो लिखे हैं डेट बाय डेट, तो लगभग 3-3.5 साल ये इसका पीरियड रहा। And if you go to the Thompson Chain Reference Bible, where the chronology has been given, about 3.5 years, this period of Absalom continued. अब आप मिलाते जाइए, मसीह से तुलना करते जाइए। You can keep on comparing his story with that of the Antichrist. वो लोग किसके वंश थे? Both belong to whom? हैं? अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये मसीह विरोधी का मतलब नहीं कोई दुश्मन, वो मसीह साथ दिखता था मगर अंदर से मसीह विरोधी था। Antichrist doesn't mean somebody who's an opponent or enemy. Rather, he is like Christ on the outside, but from within, he's completely opposed to Christ. जैसे परमेश्वर के पुत्र को शरीर धारण करके 3.5 साल काम करने का अवसर मिला, ऐसे ही शैतान के पुत्र को, मसीह विरोधी को शरीर 3.5 साल काम करने का अवसर मिलेगा। Just as the Son of God became man in flesh, in human form, and labored 3.5 years, the Antichrist will also get a body to work on the earth for 3.5 years. हाँ, वो भी मैन ऑफ पीस, शांति के पुत्र कहलाएगा, He मगर will एक also बात, be called the man of peace. शांति आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, पर जैसे यीशु देता वैसे नहीं देगा। Yeah, he will also say, "My peace I give to you," but not like Jesus Christ. यिर्मयाह 7 में कहता है, अगर लोग शांति के लिए, उन्हें पीस चाहिए, शांति चाहिए, और ये आदमी शांति देगा, मगर वो शांति नहीं देगा जो मसीह देता है। In Jeremiah 7, yes, this man will bring peace for people who are looking for peace, but not the peace of Christ. वो फर्क देखिए थोड़ा सा, See the difference. मसीह हमें कहाँ ले जाएगा? Where will Christ take us? स्वर्ग। To heaven. स्वर्ग ले जाएगा, He will take us to heaven. स्वर्ग यहीं उतारूंगा, तुम यहीं बनाऊंगा। But the Antichrist will say, "I will bring down heaven for you here. I will make earth, heaven on earth." वहां नहीं स्वर्ग की बात करेगा, वहां ले जाने। He will not talk about that heaven. आपको नए आकाश, नई पृथ्वी देने की बात नहीं करेगा, तो कहेगा मैं यहीं करता हूँ। He will not talk about the new heaven and new earth. He'll say, "I give you heaven here. हर एक के बैंक में दूंगा। I will give money in everyone's bank." खैर, अब ये आदमी कब प्रकट होगा? मैं जल्दी से कर रहा हूँ, बहुत देर ज्यादा Now, नहीं। when this will man be revealed, I'm quickly going through this. ये आदमी जिस दिन प्रकट होगा, उस दिन प्रभु का दिन आ जाएगा। The day this man is revealed, the day of the Lord will come. प्रभु का दिन नहीं आएगा जब तक ये आदमी प्रकट ना हो। The day of the Lord will not come until this man is revealed. मान लीजिए कल आ जाता है ये आदमी, Suppose the son of perdition, the Antichrist comes tomorrow. प्रभु का दिन आ गया। The day of the Lord has come. पढ़िएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1, जरा ध्यान से पढ़िए। Sorry, 2 Thessalonians 2:1. हाँ, 2:1, यस भाई। हे भाइयों, पढ़िए भाई, जब तक हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। आगे। अच्छा, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। प्रभु का दिन आ गया है इसलिए घबराओ नहीं, क्योंकि पहले क्या होना जरूरी है? वो मसीह विरोधी का प्रकट होना जरूरी। आगे पढ़ो भाई। And 3rd verse, please read. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हाँ, आप मेरी बात समझिए, बिल्कुल साफ लिखा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है? So the day of the Lord will not come till the son of perdition is revealed. और देखिए फिर आगे बताता है, वो मैं इस समय नहीं जा रहा उस जगह पर जो डैनियल नबी में कहा कि वो मूरत खड़ी होगी। नबूकदनेस्सर की मूरत बताते हैं लोग कि वो 60 फीट ऊंची और 6 फुट चौड़ी थी, उसकी कैलकुलेशन बताते हैं 666 की है। खैर मैं उसमें नहीं जाता, मगर ये बातें
मती बताता है, आप पढ़िएगा नहीं, सिर्फ आपको याद होगा, 24 और 15 में बताता है, जो पढ़े वो समझे। इसका मतलब है जिसके पास स्वर्गीय समझ है वो इन बातों को समझ पाएगा, वरना नहीं। Matthew 24:15, the Lord said, "He who hears, let him understand." That means it's not with everybody this understanding. Some people have it. इसलिए अपना पूरा राजनीतिक प्रभाव बनाएगा, जैसे He will have a complete political influence like Absalom. अब्सलोम ने क्या किया? What did Absalom do? वो रोज सुबह उठ जाता था, Wake up in the morning वो इलेक्शन कैंपेन में लग जाता था। and get into election campaign mode. भाई तुम्हें ये जरूर ना करो, Oh, you're doing this, do this. तेरा केस फंसा, बस आते ही भाई Your case is getting entangled. The moment I come to power, I'll solve it. कैंपेन आ रही है, बहुत सारी चीजें आएंगी आपके साथ। And this campaign is coming, many things will happen. तो उसने पूरी जो ग्राउंड थी, भूमि थी, राजनीतिक भूमि थी, वो तैयार कर ली थी, इलेक्शन कैंपेन कर करके। और दाऊद क्या था, वो इसकी चालों से He, by doing these repeated election campaigns, had prepared the whole ground, but David was not conscious of this person's devices. तो जो लोग शैतान की चालों से अनजान रहेंगे वो धोखा खाएंगे। And those people who are careless about Satan's tricks, they will be deceived. वो खा लेंगे, वो उसके फ्लो में आ जाए और बहुतों को भरवा भी लेगा वो। And he will deceive many also. अब्सलोम ने बहुतों को भरवा लिया। Absalom deceived many. हाँ, देखिए मैंने कहा कि मैं एक बात करके जल्दी से, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है इस पे विशेष। मसीह विरोधी 33 साल रहा है, 33 साल Pardon रहा, me? 33 प्रभु यीशु The- मसीह पृथ्वी पर 33.5 साल रहा। The Lord Jesus Christ was 33.5 years on the earth. सिर्फ 33 साल, मगर 30 साल वो हमारे बीच में चलता फिरता रहा, बिल्कुल, और उसके भाइयों को नहीं पता था कि ये मसीह है। But he was amongst us for nearly 30 years and he was roaming amongst us. Even his brothers didn't know that he's the Christ. खाता पीता उठता बैठता, उनके बाजारों में जाता, किसी को पता नहीं लगा कि ये परमेश्वर का। 30 years he was going into their bazaars and working and living a normal life. No one knew he's the Son of God. बहुतों का परमेश्वर के बाइबल का अंदर मसीह विरोधी पैदा हो चुका है, घूमता फिरता खाता पीता सब कुछ है, मगर लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। Many people are saying that the Antichrist has already been born. He is living a normal life among us, but we are not, many people not able to जब प्रभु का recognize him. समय आया तब वो प्रभु प्रकट हुआ, जब इसका समय आया तो ये प्रकट हो जाएगा। When the Lord's time came, he revealed himself, and when the time the Lord will come, Antichrist will be revealed. और देखिए कैसे पूरी भूमि तैयार है। मैं थोड़ी सी बात कहूं, अभी How the whole ground was prepared. इस्राइल में ये कहा जा रहा है, ईसाई लोग जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो मसीहा नहीं है, ये झूठ है। And in Israel, it is said that the people whom the believers called as Messiah is not a Messiah. This is a lie. मसीहा तो आने वाला है। Messiah is going to come. हाँ, ये तो झूठ प्रचार करते हैं। What they preach is a lie. और इस्राइल में पूरी तैयारी है कि आप ईमेल तक से भी प्रचार नहीं कर सकते, वरना 2 साल की सजा हो जाएगी। In Israel, there is complete preparation. You cannot even preach through email, otherwise you'll be in prison for 2 years. वो वीडियो भेजा है, वो सारे वो भेजे। A brother has sent these videos to me. हाँ, कि आपको 2 साल तक किसी, आप ईमेल तक भी अगर किसी को किया, Even if you send an email to someone, और सच मानिए विश्वासी ही लोग सबसे ज्यादा इस्राइल का समर्थन। and to tell you the truth, it is the believers who support Israel the maximum. इस्राइली राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है, Where is Israel going as a political entity? जा रहा है। Pardon, brother?
मसीह विरोधी के इंतजार में जा रहा है, वो बाइबल की It is going into the preparation, the waiting for Antichrist. और अब्सलोम इसी को दिखाता है एक तरीके से। And this is what Absalom shows. और दाऊद की सबसे बड़ी गलती हुई, वो जानकर भी बिल्कुल अनजान बन गया और इसलिए इस बड़े धोखे में पड़ गया। And David's greatest mistake was knowing fully well he got into this deception, was caught in these devices, and that was his greatest loss. विश्वासियों को प्रभु कहता है, तुम शैतान की चाल से अनजान नहीं हो। और The जो Lord अनजान, says, the Lord says to the believers, we are not ignorant of his devices. Those who are careless about it, हम असली कहानी पे जाते हैं। let us come to the right story. जब एक आत्मा किसी में से निकल जाती है तो When फिर an evil spirit goes out of a man, साथ अपने से बड़ी और प्रबल दुष्ट आत्माओं को लेकर लौटती है। she returns back with 7 more powerful evil spirits than she. हाँ या नहीं? True or not? जब एक पाप आता है And one sin comes, तो 700 पापों को लेकर एक साथ आता है जो उससे बड़े प्रबल हैं। then it comes along with 700 deadly sins which we do not know of. फिर वो 700 है वो कितने लाएंगे? And imagine how the 700 will bring. हाँ, तो फिर मैंने आपसे कहा ना, हम इस कहानी के इस किरदार पर, इस बात पर जाएंगे। We will go on this aspect of the story. अब करीबन दाऊद 50 साल का है Now David is around 50 years old. और बुनियादी गलती कहाँ है उसके परिवार में? Where is the fundamental flaw in his family? उसके कब 8 बीवी हैं उसके पास He has Now- 8 wives और 70 से 80 रखैल हैं। and about 70 to 80 concubines. इतना सब होने के लिए व्यभिचार से वो तृप्त नहीं हुआ। Even after all this, he was not satisfied with his sexual life. ना वो और करता, उससे कई गुना व्यभिचार की अभिलाषा उसने। The more he got entangled in such physical relationships, the more desire he had for sex. 70 से 80 रखैल, और फिर भी क्या है? Even after 70 to 80 concubines, and still he's not satisfied. और ज्यादा लालच। So there is an even greater long lust and desire in him. अब इस समय दाऊद ने कोई भजन नहीं लिखा। Now during this period, David did not write any psalm. उसने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया। He had left his God, जो दिन में 7 दफा आराधना करता था और 3 दफा प्रार्थना करता था, अब वो शाम के समय जहां मंदिर होना था, कहां पर? the one who used to pray thrice a day and worship the Lord 7 times a day at the temple of God. Where is he now? अब उसका मन उसके परमेश्वर के साथ नहीं लगता। Now his heart was not joined to his God. अब ऐसे विश्वासी का मन कहाँ लगने लगे? Now such a believer, where is his heart? कहाँ लगने लगे? Where? अब घंटों लगा देता है उसको। Hours he spends on these social media, etc. परमेश्वर को छोड़ दिया उसने। He has left the Lord, मगर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। but the Lord had not left him. प्रभु ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। The Lord said, I will not leave you. जब प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो ये कह रहा है कि तू मुझे छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो ये कह रहा है। कौन कह रहा है भाई? डेविड। भाई जब प्रभु डेविड से कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो इनडायरेक्ट वे में वो कह रहा है कि तू मुझे छोड़ सकता, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। When the Lord is saying to David, you can leave me. When the Lord is saying to David, I will never leave you nor forsake you, indirectly the Lord is saying, you can leave me, but I will never leave you. इस्राएल में जो राजा घर होता वो बहुत ऊंचा होता था, और उससे ऊंचा राजा का अपमान करना। The house of the king was the highest in the kingdom, and greater was the dishonor of the king. आपके पड़ोसी का 3 मंजिला मकान आपको बहुत आपके ईगो को छोड़ देता। Your 3-storied house of your neighbor pinches your ego.
हाँ, आप कुछ बोलना सा नहीं समझते हो क्या अपने आप Another, को? मतलब आप जिस मतलब बोना सा you नहीं सोच रहे हो, you feel yourself a pygmy in front of him. तो आप राजा से ऊंचा मकान नहीं बना सकते। You cannot build a house bigger than that, higher than that of the king. अब उसके चारों ओर एक तो उसकी सुरक्षा के घेरे के लिए, उसकी सुरक्षा गार्ड के लिए जो बहुत विश्वास योग्य है, और जर्नल्स के घर हुआ करते थे, मगर उतनी ऊंचाई की नहीं। And truly, his generals and his special officers had their own houses, but none higher than the king's house. अब वो अगर अपनी छत पे है तो उनके आंगन में, So when he's standing on his terrace, he can look down at their terraces. हाँ, मगर हर एक आदमी की आदत है कि दूसरे घर में झांकना, और क्या बड़ा मजा आता है। Every man's desire is to look into somebody else's house. हाँ, वो मैंने एक बार बहुत पहले बताई, सालों पहले की बात है, मैं जब लड़के ही था, Many years back, I had said one thing. मेरा एक दोस्त कहता था, One of my friends used to say, नहीं होते थे पहले, कुंडी के दरवाजे होते थे, कुंडी लगा के। there first used to be these doors which used to have these, kundi मेरा bolte hain Hindi mein. वो कुंडी होती थी, बीच में थोड़ी दरवाजे में दरार भी रहती थी, And in between the two leaves of the door, there used to be a gap. तो मेरा दोस्त कहता था, My friend used to say, तो परमेश्वर को एक आंख यहाँ बनानी चाहिए थी, the Lord should make one eye on the hand. और दूसरे घर में हाथ डाला और देखिए क्या हो रहा है। Just put the hand inside in that gap and see what is going on in the other person's house. ये बड़ी चिंता है कि मेरे घर में क्या है। Always concerned what is happening in other person's home. तो ये भी था कि वहां क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, और बस अब ये Always what is happening in that person's house, that person's house. घर तो ऊंचा था ही था भाई। Already his house was greater, higher. कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से टापते हैं। So we'll हाँ। quickly come. और आपको सबको कहानी मालूम है कि किस You all तरह know the वो story. बाप ने किया। बाप तो वहीं से चल रहा था जब से So ये सब। David fell into sin, but sin had started much earlier when he married all those women. अब ये बाप कर गया तो नुकसान क्या क्या हुआ? वो बाप Now तो वहीं when he तो वहीं थे, है नहीं? वो धीरे धीरे अलग हो रहा था प्रभु से, अलग। when the sin had already started, he had already started drifting away from the Lord. फिर बाप जो है आपको आत्मिक रूप से पैरालाइज कर देते हैं, आप जिंदा भाई- तो रहते हैं, करने लायक नहीं रहते। भाई आपको थोड़ा माइक में बोलना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑडियो कटता है, वो फिर YouTube पे भी सुनाई नहीं देगा, सीधा माइक में। Sin paralyzes you. When you sin, it will paralyze you. मगर आप दिन भर अपना कहाँ बिताते हैं, घंटे कहाँ बिताते हैं, आप कितना प्रार्थना का बच्चे, आप धीरे धीरे बिट बाय बिट अंश अंश करके आत्मिक रूप से पैरालाइज का मतलब है अपाहिज हो जाएंगे। आप में Where- जीवन तो रहेगा मगर कुछ काम करने लायक नहीं रहेगा। You are sitting here, but where do you spend the rest of your day? Bit by bit, you will be paralyzed. You will have a desire, but not the ability to do it, to read the word of God, to pray. करने लायक कुछ नहीं रहोगे। You will have the desire, but you will not be able to do it. डिजायर में बोलो, मैं डिजायर नहीं बोल नहीं, you will. Why can you repeat that again? आपका voice कटता है. मैं कह रहा हूँ आप जिंदा तो रहेंगे मगर Oh, कुछ you will remain alive, but not have the capacity to do anything. हाँ, आप अपना जो नमकीनीपन का स्वाद है वो खो देंगे। मसीह You जीवन का स्वाद, you will lose the saltiness flavor as a believer. अगर एक विश्वासी अपना स्वाद खो दे, पैरालाइज हो जाए, तो वो फिर किस काम का है? If a believer loses his saltiness and becomes paralyzed, what use is he? वाक्य में इफ्सियों में को दिए 2 अध्याय में, तू जीवता तो कहलाता है पर In Ephesians chapter 2, you're called living, but rather in Revelation chapter 2, the Lord says to the church, you're called living, but you're dead. हाँ,
अब मैं उसके इफेक्ट बताता हूँ क्या क्या और आगे Now जल्दी I से। tell you the effects. दूसरा सैमुएल 12:8 में पढ़िए। 2 Samuel 12:8. 2 Samuel 12:8. जब उसने पाप जी 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 भाई 12:8 जी भाई 12:8 उतना ही पढ़ना जहां लिखा है भाई, मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था। हाँ, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। I was यानी going to give you a lot. एकदम कोई ब्लेसिंग आ रही थी, stagnant The blessing was coming, but it stopped. किस चीज से रोकती है? What stopped it? कई बार हमें पता नहीं लगता, हमारी आशीषें रुक जाती है क्योंकि कोई छुपा पाप हमारी जीवन पर से। Many times we don't realize, but some secret sin stops our blessing. अब भाई सरवलाल बता रहे हैं, मैं एक जगह गया नहाने के लिए और भाई जी मैं नहाऊं तो पानी नहीं आ रहा, बड़ा थोड़ा थोड़ा आ रहा, बदबूदार आ रही है, ये क्या बात है? But Sadhana says, I went to take a bath in one place, and the water was not coming, and what was coming was stinky water. So I thought, what is the problem? क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है? Why is it happening? मतलब लोगों को बुलवाया भी तो थे, चेक करो ये क्या बात है। All the people check what is happening. तो जो पानी का टैंक था उसके छेद में एक छोटी सी चिड़िया मरी हुई वहां फंसी पड़ी। In the water tank, in the flow, there was a small mouse that had died inside or trapped पूरा inside, पूरा पानी सड़ा दिया उसको, and the whole water stank, वो फ्लो रुक गया। and the flow stopped. तो यही एक बात करता, मैं तुझे बहुत बड़ी आशीष देने वाला था। So I was going to give you a great blessing. तो कई बार हमें पता नहीं लगता, हम खुद अपनी आशीषों को बर्बाद करते। Many times we don't realize we destroy our own blessing. तो प्रभु कह रहा था मैं तुझे देने वाला था। Lord says, I was going to give it to you. कई लोगों को देखा, एक प्रभु का भी दास था, क्या हुआ, बहुत अच्छी लड़की उसे मिली, बहुत विश्वासी मिली, बैंक में बहुत बड़ी अफसर थी, है, और बहुत अच्छी थी, है, थोड़ी सी मोटी थी। And about a man of God, he got a proposal of a girl. She was a very good, nice girl, a good believer, working in a bank, but slightly plump. माँ कह रही ये लड़की तो और अच्छी दिखाई देती है। Oh, mother said, this girl, she is so fat. नहीं नहीं, यू कहीं, ये औरत लड़की थोड़ी दिखाई देती है, ये Oh, तो औरत है। she doesn't look like a young girl. She looks like an older woman. और भाई जी आ गए, And he came back. प्रभु ने पता नहीं, मैं कुछ दिनों बाद गया उस विश्वासी के घर में, एक लड़की थी, दोनों माँ बाप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, नहीं समझ में आया। She was the only girl. The parents and government employees. एक बैंक में एक क्लास ऑफिसर थी, और भाई जी मैं दोबारा गया तो लड़की मैंने इतनी खूबसूरत देखी, मैं अपनी पत्नी से कहा मैं दंग रह गया, यार ये वही लड़की। And she was an A-class officer in the bank. Next time I went, she was such a beautiful girl. I told my wife, is it the same girl? प्रभु उसे आशीष देने वाला था। The Lord was going to bless this brother. Lost it. फिर संगति से भी गया, Then he lost himself from the fellowship also. क्यों? वो सोचता है, उसे कभी याद नहीं आता होगा ये मेरा पाप था, जहां से सारी Maybe he never realizes this was my basic sin that started all the problem. वही उसकी आशीष स्टैग्नेंट। That is where his blessing started stagnating. मैं तुझे आशीष देने वाला था, I was about to bless you. हाँ, फिर दूसरी बात क्या कहता है प्रभु? And what is the second thing the Lord says? टाइम होता जा रहा है, और दूसरा सैमुएल 12:10 में कहता है अब तेरे घर से तलवार अलग नहीं। 2 Samuel 12:10 he says, now the sword will not depart from your house. अब तेरे घर से ये झगड़े कभी अलग नहीं। These infighting will never go from your house. 4 गुना 4 बेटे मरे जो पैदा हुआ था उससे, फिर उसका बाद अम्मोन मरा, फिर उसके बाद अबशलोम मरा, और फिर उसका नाम है Adonijah. लास्ट Yeah. So
instead of for one murder that he did, he lost 4 sons. He lost a son born out with Bathsheba. He lost Amnon. He lost Absalom, and finally he lost Adonijah. देखिए इतने विश्वास योग यूरिया की हत्या कराई और हत्या करके क्या बोला, पता क्या लापरवाही से दिया है? क्योंकि कोई नहीं, तलवार उसे भी मारती है, इसे भी मारती है, ऐसा तो क्या होता है? Having got such a faithful Uriah the Hittite murdered, David's language, look at it. He says, "Oh, the sword killed one man like another," totally careless. उस परमेश्वर के दास, विश्वास योग दास, छोटे दास, उसकी ये कीमत है, तलवार क्या है, मर गया तो क्या हुआ, तलवार इसे सोचिए, उसके लिए ऐसे संतों की मौत का कोई मतलब नहीं रह गया। Is this the value he had for a man of God's life? He's so casual about it. They have no value for God's people. तूने ये काम छिपके किया, तेरी You did it secretly. I will do it in the open sun. पाप कहाँ से शुरू हुआ और कितना मल्टीप्लाई होता चला? Where did sin begin? How much it multiplied. हाँ, और फिर उसने अपनों को जो बहुत विश्वास योग्य दुश्मन बना, and then he made the ones who were very faithful to him his enemies. हित्ती उरिया की पत्नी का जो दादा था, उसका नाना, हाँ, अहीतोफेल था, नाना था। Ahithophel was the maternal grandfather of Bathsheba. और बहुत बड़ा उसका मिनिस्टर था और बहुत ही दिमागदार आदमी था, बहुत विश्वास योग्य, and an amazing minister and counselor of David, very intelligent man. ऐसे आदमी इसलिए दुश्मन बना क्योंकि उसने उसके दामाद की हत्या, this Ahithophel became his enemy because he got Bathsheba's husband Uriah murdered. अहीतोफेल कभी भी अबशालोम से नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए मिला कि उसे बदला ले। Ahithophel would have never aligned with Absalom, only did that because he had to take revenge from David. अपनों से दगा किया और अपनों ने फिर उसे छोड़ना शुरू कर दिया। He betrayed the one his own, then his own betrayed him. पाप वहीं रखा भी, Sin is still there. अब वो बढ़ता जा रहा है, and it is growing. हाँ, देखिए इस पूरे परिवार में कितनी पॉलिटिक्स है। मैं टाइम नहीं मेरे पास दिखाई, घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, क्या करूं। and देखिए इसके पीछे इसी के घर के आदमी थे लगे हुए सारे। आप थोड़ी सी अगर आपको बाइबल पढ़ी आपने तो ध्यान आएगी आपको। his own family members are after him. If you read the Bible, you'll understand. डेविड का एक भाई था शिमी, बड़ा भाई था, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था यूनादाब, बड़ा चंट लड़का था, और अम्मोन का दोस्त था, इनके घर में घुसा रहता था, इनके घर में घुसा। And David had a brother whose son was Jonadab, and he was a very cunning man, always in his house, a friend of Amnon. हाँ, भतीजा था उसका। He was David's nephew. अगर अम्मोन से जो पाप करा उसी ने, and he forced Amnon's hand to commit that sin. और उसे सलाह दी तू ये काम करियो भाई से। He told him to commit that terrible sin. वो पहचान नहीं पा रहा कि शैतान कहाँ से उसके घर में घुस रहा है, किस तरह। Not able to see from where Satan is entering his home. और एक और बात देखिए बड़ी ताज्जुब की, जब अबशालोम ने उसे मार दिया, क्या नाम है, अम्मोन को मार दिया, मैं पूरी कहानी में नहीं जा रहा, मालूम है। And the amazing thing, when Absalom murdered Amnon, हाँ, हम फेक न्यूज आई एकदम तेजी से फैली, the fake news came, मार दिए, सारे प्रिंसेस मार दिए, भाई के कपड़े फाड़ लिए दाऊद ने। all the princes, all the king's sons had been killed. He tore his clothes. वहीं पर ये शिमी का बेटा यूनाबाद खड़ा था और कह रहा नहीं घबराओ नहीं, रियल न्यूज है कि वही मारा गया अम्मोन। पर तुझे कैसे पता कि वो अम्मोन मारा गया, तू तो यहाँ खड़ा। And that man, Jonadab, was standing there. He said, no, not everyone. Only Amnon has been killed. How do you know? तुझे कैसे पता यहाँ पर? How? Nobody said, how do you know? और उसे पता ही उस दिन बना था ये प्लान, जब अबशालोम बना लिया था।
यानी पूरे प्लान में कौन था? Because in the plan that Absalom had made, this guy was also involved. क्या तो हिला के धर दिया? He shook up David's house हाँ, क्योंकि वो शैतान की चालों से because David was careless of Satan's tricks. हाँ प्रियो, और कई जगह तो दाऊद ने आंखें देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। न्यायी था, मगर बेटा इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि भाई जी In many places, David, knowing the truth, shut his eyes. His son was so dear to him, so handsome. और इसके पीछे योआब का हाथ था उसे लौटाने के, बिना माफी के माफ कर दिया और उसे भी दिया। Bringing back Absalom was the hand of Joab, and he got him back without repentance. और प्रियो 15 अध्याय में बाप था, जब तक छोटा बेटा वो लेने नहीं गया, उसे दरवाजा तो खुला था उसका। In Luke जब 15, आया वो लगाया, उसे सीने से नहीं लगा। Luke 15, the father did not go to chase the prodigal son. He only came back himself. Only then he embraced him. क्या बेटा मैं तेरे लिए मर जाता, हाय मैं मर जाता। मैं इसके लिए हारून की दाद देता हूँ, उसके 2 बेटे मर गए, वो समय उसने कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। Now when his son Absalom died, he's crying, "Oh Absalom, wish I had died for you, Absalom, Absalom." I commend Aaron. When his 2 sons died, he made no emotional drama. हाँ, मगर भाई जी वो उसकी खूबसूरती को देखकर, और सारी बाइबल हमें क्या सिखाती है? And seeing his beauty, what the Bible teaches मंडली में us. सिखाती है, Pardon, brother? मंडली में हमें एक बात सिखाती है, Assembly teaches us one thing. बहुत ध्यान से पढ़िए, रोमियो 16-17। मुझसे लोग कहते हैं कि तुम ना घमंडी हो, तुमने उसे अलग किया। Romans 16:17, people say, "You are proud, you have cast him out." Read Romans 16:17. अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हाँ जी, ये पूरा परिवार चला जाएगा, Oh, the whole family will go, परिवार को बर्बाद करके जाएगा वो। but he will destroy the assembly. वो कह रहा है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। He said, discern such people. प्रभु ने बड़ी दया की, एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत, और चानी भाई वहीं पर बैठा था। हाँ, मुझसे कह रहा, मैंने कहा भाई आप कुछ भी क्यों ना हो, मगर आज से और अब तक फिर मेरी आपकी कोई संगति नहीं। Now there was a very big man, and Chani was there, and I told that brother, I said, whatever might be, brother, from today my fellowship with you is over. हाँ, लोग कहेंगे बड़ी बेवकूफी का काम था। People will say, this is very foolish what you have done. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6 में क्या कहता है? What does the Lord say in 2 Thessalonians 3 and verse 6? 2 Thessalonians 3:6. जी भाई 3:6। पर अभी तिमोथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6। जी भाई, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम में से हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। दाऊद ऐसे लोग ऐसे को अपने गले लगा। David embraced such people. पूरा राज्य बर्बाद कर दिया। The whole kingdom was destroyed. यो बेटा कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, However handsome the son may be, सांप कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, a snake may be very beautiful, but it's still a snake. ऐसे बेटे से तो जो पाप में जी रहा है, पाप में बढ़ रहा है, पल रहा है और पाप में मरेगा, बेहतर यह है कि ऐसा सुंदर बेटा पैदा ही। A son who's living in sin is going to die in sin. Better such a handsome son was never born. हाँ, मैं मानता हूँ शायद आपके परिवार की हालत अच्छी नहीं हो, छुपी हुई हालत आपकी और आपके परिवार की हालत अच्छी ना हो, मैं मानता हूँ। I accept that maybe the condition, hidden condition, your family is not good.
हाँ, मगर परिवार अच्छा ना हो, मगर आपके पास परमेश्वर अच्छा है। Maybe your physical condition is not good, but it may not, but your God is good. हाँ, आपका पति भला आदमी ना हो, पत्नी भली ना हो, मगर आपके पास परमेश्वर भला है। Maybe your husband is not good, your wife is not good, but you have a good God. आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। You will, pardon brother, you will have to. एक स्टैंड को क्या बोलेंगे? You will have to take a stand. You will have to take a stand. हाँ, एक फैसला करना पड़ेगा, ठीक है। You will have to take a decision. नहीं तो आप पैरालाइज हो जाएंगे। Otherwise, you will be paralyzed. आपके घर की बुनियादें हिला देगा। He will shake the foundations of your home. भाई ऐसा नहीं कि मैंने बड़े शर्मनाक पाप ना किए। It मैं is पाप से not that it is मैं not पूरी- that I have not, मैं दौड़कर अपने भाइयों पर गया, कुछ विश्वास भाइयों पर, मैंने कहा ये हुआ मुझसे। it is not that I have not done shameful things, but when I did, I ran to my brothers, told them what I have done. मेरे परमेश्वर ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने उस समय मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उनकी प्रार्थनाओं से और परिश्रम से फिर उस हार से बाहर निकाल दिया। My Lord, my brothers and my dear friends, they stretched their hand towards me and they lifted me out of that situation. हाँ, मुझे और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। There was no way out for me. आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। Understand this. हाँ, यरूशलेम, अब जब ये समय, जिस समय आप बात करो, Now, at this time in Jerusalem, 60 साल का है, दाऊद 60 साल का है, David is 60 years old. उसका बेटा सोलोमन है सिर्फ 10 साल का, His son Solomon is just about 10 years old. और सब कुछ बिखर गया उसका। Everything has been scattered. हाँ, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। There seems to be no way forward. अब जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचा उसके पास। Now, even to save his life, he's running. He's nothing left with सब him. खत्म, परिवार खत्म, Everything is over. Kingdom is over. बस एक बचा था जहाँ सहारा था, Only one refuge. और वो था दूसरा सैमुएल 15:30। And that was 2 Samuel 15:30. 2 Samuel 15:30. हाँ जी भाई, 15:30। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके, एक मिनट रुक जाओ, जैतून का पहाड़, ये The वो भूमि, Mount of Olives. ये पश्चाताप की भूमि है, This is the ground of repentance. पश्चाताप की भूमि है। This is the ground of repentance. 7 साल आगे दाऊद की संतान ने इसी भूमि पर जैतून के पहाड़ पर मेरे लिए प्रस्ताव किया। Hundreds of years later, on the same ground of Mount of 1000 years later, 1000 years later, the son of David made the propitiation for my sins on the same ground, a repentance for my sins on the same ground. उसकी एक प्रार्थना ने मुझे बाहर निकाला। His prayers have brought me out. और दाऊद के पास बस एक ही प्रार्थना रही थी कि वो इस पश्चाताप की भूमि पर आकर अपने किए पर पश्चाताप करे। And David had only one prayer, that he would come on this ground of repentance and repent. डेविड और मेरी गवाही एक सी है, हमारे शरीर पर उस पाप के दाग तो है पर घाव नहीं। We, David and I, share a similar testimony. We have the scars of that sin, but not the wound. उस शर्मनाक पाप के दाग तो है मगर घाव नहीं है। That shameful sin scar is there, but not the wound. उस पश्चाताप की भूमि पर एक प्रार्थना ने कहा निकाल कर रखा। On that Mount of Olives, one prayer of repentance. हाँ, प्रभु की एक प्रार्थना ने मुझे निकाल दिया, दाऊद की एक The प्रार्थना ने prayer निकाल, of the Lord delivered me. David's prayer delivered him. और जो कहानी कहती है कि एक पाप कहां तक खींच के ले जा सकता है, And the story tells us, where can one still pull us to? और एक प्रार्थना कहां से खींच के निकाल सकता And one prayer can pull us out from where? है। हाँ, और जो मैं इस बात को जीवन भर डेविड की इस कहानी से सीखता हूं।
This is what I've been learning all my life from David's story. इसलिए शैतान की चाल से अनजान मत रहो। That is why do not be ignorant of Satan's devices. पैरालाइज कर देगा आपको, आपका He स्वाद will, छीन लेगा। he will paralyze you. He will take your health away. हाँ प्रियो, मगर एक और बात मैं एक तो ये बात मैंने आपसे की, एक प्रार्थना और एक पाप। एक पाप कहां से कहां तक ले जा सकता है, और एक सच्ची पश्चाताप की प्रार्थना। जैतून के मतलब पश्चाताप की भूमि है वो। One sin वहां can तक make ले you, one sin can make you fall so deeply, in one repentance can pick you up from such depth to such heights. मगर दाऊद की एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है। But there is one thing very beautiful about David. प्रभु करे और मुझ में और आप में भी May the Lord have mercy. It may be in you and me. बदल जाए, सोच बदल जाए, Pardon, brother? हमारी सोच बदल जाए। Our thinking may change. साउल उसका दुश्मन था, Saul was his enemy. मगर कभी उसने उसकी जान लेने के लिए सोचा, बदला लेने की बात सोची? But did David think ever to kill Saul? Never. ये सोच ही में नहीं रखता। This thought was not there in him. बुरे का भी बुराया होते हुए उसकी सोच में नहीं था, क्या उसका बुरा हो रहा। Even if evil happens to an evil man was not there in David's heart, even if evil is happening to him. मephibosheth उसके दुश्मन का बेटा था, जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला। Mephibosheth was his enemy's grandson, but he looked after him as his own son. अब्नेर उसके दुश्मन का सेनापति था, जिसके लिए उसने छाती पीटी। Abner was his enemy's captain, but he took Abner under his wings. हाँ, अब्शलोम उसकी जान और उसका राज लेने वाला था, मगर उसके लिए बेचारे ये उसके पास दिल था कि काश मैं तेरे लिए जाऊं। Absalom was going to take his kingdom and everything from him, and yet he says, "Oh, Absalom, wish I had died on your behalf." ये वो क्रूस की शक्ति है, बाप इन्हें माफ कर। This is the power of the cross. Father, forgive them. ये क्रूस का काम उसके जीवन में था, This work of the cross was there in his life. इसलिए इस क्रूस की सामर्थ ने उसे उठाकर फिर सबका सब लौटा दिया। That is why the power of the cross again gave him back everything. एक दास प्रार्थना में प्रभु पर दोष लगाता है, क्या लगाता है? One man of God blames the Lord in prayer for one thing. प्रार्थना में दोष लगाता है प्रभु, He blames him. योना 4 और 2 पढ़िए। Read Jonah 4 and 2. Jonah chapter 4 and verse 2. पढ़िए, प्रार्थना में कर रहा है और दोष He किस पे prayed. लगा रहा है? 4:2 जी भाई, उसने हाँ। यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने। कमी है, इतने संसार को कैसे सह रहा है, क्यों नहीं आग बरसा देता? This is the Lord's fault. He is gracious and kind. He is suffering the world. Why doesn't he destroy the world? बड़ा हुआ आगे। जी 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 भाई, यस भाई। इसलिए अब यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अगर आप तू दुश्मनों के प्राण नहीं लेते तो मेरे तो ले ले कुछ। If you don't take the enemy's life, take mine. प्रार्थना सुनना, What a prayer. हमको तो आप इतने बदले के भाव से भरा, तो यही कमी है। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो मीटिंग के बाद एक आदमी आया। So I was preaching in one place. One man came to meet me after the meeting. तो कहना परमेश्वर में बहुत बड़ी कमी है, बड़ी भारी। If God has one great lack in him. थका हुआ था, मगर जल्दी जब उसने कहा ना परमेश्वर गलती में परमेश्वर, I was tired. The moment he said that, my ears perked up. बड़ी भारी गलती है परमेश्वर। Big mistake. मैंने कहा क्या है? I said, what is it? परमेश्वर जरूर से ज्यादा प्यार। The Lord loves beyond understanding.
जी कहिए, जब तो मैं बैठा भी आया। This is the lack, and that is why I am sitting. मुझे आपका नहीं मालूम, मगर मैं तो इसी बार बैठा हुआ। I don't know about you, but this is why I am sitting. करता है मेरा बैठने का। तो प्रियो, प्रभु करे हम May the Lord बिल्कुल have mercy. शैतान की चालों से अनजान ना रहे, We may not be ignorant of Satan's devices. और एक बदले हमारी सोच में बदले का विचार में जन्म ले। And no revenge may come in our heart. प्रभु करा मैं तुझे और क्या देने वाला था। The Lord says, what more was I going to give to you? फिर जांचते तो प्रभु करा मैं तुझे और देने वाला हूँ, था And if नहीं। you examine, the Lord will say, what more I am going to give to you. आइए गीत गाएंगे भाई के साथ और Come. फिर प्रार्थना। We will sing a song and then we will pray.